वी से रियल डॉक्टर सर्जन ही होते हैं, हम हमेशा सबको यही बोलते हैं। जिनके पेरेंट्स डॉक्टर बोलेंगे हम लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, चुपचाप घर आ जाओ, हमें पता है तुम कितना पढ़ रहे हो। आई थिंक लेटर ऑन सर और नेम दोनों ही हट जाते हैं, बेबी जान। So you had inserted a whole bottle of beer inside it. Hi guys, welcome back to Three's a Crowd. आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है because we have some really cool guests. One of my mom's favorite people जो मुझे शायद उन्होंने 6-8 months पहले बोला था दीदी ये चैनल है बहुत अच्छा है आप देखना, and that is when I first saw them. So welcome to the channel Dr. Duo. Thank you, thank you, thank you. Can you guys please give a small introduction about yourselves? Okay, so I am Dr. Kanika and right now I am pursuing MD Dermatology. And I'm Dr. Shivan and I'm pursuing my MS Surgery from the same college, that is BRD, and even I'll be turning into JR3 very soon. And I think one common thing which we have is like even we had done our MBBS from private college. I'm sure she can relate very well. And फिर वही से now we are doing a PG from the government. So basically आप दोनों ने bond उस पे किया. Right, हमारा communication इसी तरह start हुआ था, like on the day of counseling, we were sitting together. And basic conversation starter हो गया because जो last sign होता है principal का ना, that was taking a lot of time. So it was just like यार क्या issue है, इतना time क्यों लग रहा है? And then फिर first चीज़ है UG कहाँ से किया है? Then she was like from private college. Then I have done from private college. And I know this story because I watch you guys. So today's edition, like we said, is going to be expectations versus reality. Generally लोग सोचते हैं कि ऐसे होते होंगे डॉक्टर्स, वैसे होते होंगे, वैसे आज हम कुछ बस्ट करेंगे myths. Yes, we are ready. तो ये बहुत ज्यादा एक मेंटालिटी है कि डॉक्टर्स जो होते हैं उनकी लाइफ सिर्फ हॉस्पिटल में होती है, एंड दैट इज व्हाई सो मेनी किड्स डिसाइड नॉट टू डू मेडिकल बिकॉज दे थिंक इट्स बोरिंग. सो इज दैट ट्रू? We definitely manage our time to balance our personal and professional life both. And basically right now we are doing residency. It's like a study phase. So अभी it's very hectic on us, and because we are under someone तो एक responsibility हमें पूरी करनी होती है. But उसके बाद भी हम time निकाल लेते हैं. But once we enter our own practice and like when we are totally practicing on our own, तब एक different aspect हो जाएगा. Then we'll have the command of our own life. So you can choose like how you actually want to live it. आपको थोड़ा बहुत fun balance जो करना है करो. So it's not like आप सिर्फ पढ़ते रहोगे या दिन भर patient करते रहोगे. It's totally upon you. अपना पैशन मेडिसिन आप इस वजह से मत छोड़ो. मैं तो I was this close to not doing medicine just because of this reason only. I thought कि नहीं, क्योंकि me as a I want to be an all rounder, but medical यूट्यूबर्स को देख के लगता है नहीं, if you manage your time it's possible. We all know that a lot of medical students date during the college time. The expectation is that the relationships last, but what is the reality? And we know your story, but generally you also have friends, right? Are they all together? Definitely. And we also have a set of experiences. Right. Actually, it depends on what stage you are dating. See, if you talk about MBBS, then MBBS में तो still there. I mean, 4.5 to 5 years before you actually get that degree and be a doctor. And उसके बाद भी एक बहुत बड़ा PG का competition आ जाता है. So MBBS में यार वो promises तो चलती है. I think सबके साथ relation में ये होता है. I'll live with you forever. I'll marry you. Blah blah blah. ये तो I think सबके साथ यही है. But you cannot say कि MBBS में आप घुस के आपके relationship में आ गए, then it will last till marriage. Because जो हमारे कॉलेज में सीन था, I think 4 to 5 रिलेशन सबके बहुत कॉमन थे. बट पीजी में थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट हो जाता है बिकॉज इन पीजी यू हैव एक्चुअली एंटर्ड अ प्रोफेशनल स्टेज ऑफ योर लाइफ जहां पे आई थिंक कंपैरेटिवली दे टर्न आउट इनटू मैरिज अ बिट more successfully, right? And I also believe कि during MBBS, even though you are in the process of becoming a doctor, तुम उतने mature नहीं होते हो. You just see someone और तुम्हें बस होता है कॉलेज में cool दिखना है तो गर्लफ्रेंड बना लेते हैं या बॉयफ्रेंड बना लेते हैं या फिर कुछ कंपनी चाहिए, तो इस थॉट प्रोसेस से ज्यादा बनता है. एंड फिर तुम जब बना लेते हो तो बातें तो ऐसी होती ही हैं कि यार हम इस दिन शादी करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे. बट when that reality hits in, तो तब पता चलता है कि ऐसा नहीं है. There are a lot of other things which you have to look for. So supposing a junior and senior medical student are dating, right? And they eventually get married. Do they call each other sir, ma'am for the rest of their lives? This is a question with all the people who are actually dating. Initially में जो भी डेट करता है वो पहले सर बोलता है, उसके बाद नाम बोलने लग ही जाता है. I think later on सर और नेम दोनों ही हट जाते हैं. बेबी जान कदम बात सर नाम की. And what about like when doctors marry each other कि वो like अगर साथ में जैसे आप लोग तो सेम हॉस्पिटल में काम करते हो तो can you make out time for it? Because I know some doctors like मेरे seniors who have married each other and they can't make
आउट टाइम फॉर देयर, लाइक हम एक दूसरे को सिर्फ संडे को देखते हैं बिकॉज हमारी पोस्टिंग्स ही अलग अलग होती है, हम एकदम अलग अलग ही रहते हैं। प्रोफेशनल जब हम आगे जाके जॉब करेंगे या अपने सेटअप पे बैठेंगे तो बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा, तब हमारे फिक्स टाइमिंग्स होंगे। बट डेफिनेटली ड्यूरिंग जियाशिप टाइमिंग्स फिक्स नहीं होते, काइंड ऑफ कभी भी जैसे इसकी इमरजेंसी लग जाती है या 24 आवर लग जाता है, तो ये चीज रहता है। हमारे केस में लकी ये चीज है बिकॉज आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट। बिकॉज डर्मेटोलॉजिस्ट लाइक इतनी इमरजेंसीज नहीं है इसका, लाइक शी हैज फिक्स्ड ओपीडी टाइमिंग्स, like after 3 PM 4 PM she will be in the room, so it's like whenever I come back from hospital even for a glass of water तो ये मुझे रूम में मिल जाएगी। until and unless मैं घूमने ना चली जाऊँ। गजब बेइज्जती है। डर्मेटोलॉजी में मेरे मॉर्निंग आवर्स होते हैं, सो लाइक अराउंड आई कम बैक बाय 4 o'clock रूम पे, और शाम को समझ लो आधा घंटा 1 घंटा और राउंड हो गया। बट इन केस ऑफ शिवांग माइट हैव एन ओटी, he might have an emergency. Fixed emergency होती है, like for 12 hours we have to be in the hospital. उसके उस emergency में if we get an operative case तो वो 12 hours complete करने के बाद उसको operation complete करके फिर next day round करते हैं, so it's like मेरा बहुत हेक्टिक हो जाता है कभी कभी। Like the surgeons are like the rock stars of the medical fraternity. ऐसा नहीं है मैम, तो आपको we always consider, always we say real doctor surgeon ही होते हैं, हम हमेशा सबको ये बोलते हैं असली डॉक्टर तो सर्जन ही होता है। The question should be who is a better doctor? Who is the better doctor? is the most controversial question. Who is the better dermatologist? It's me. Who is the better surgeon itself? This is the answer. So dramatic. This is such a couple answer. Keeping the peace both of you. अब थोड़ा ज्यादा हो गए तो जूनियर्स भी आ गए ना, तो थोड़ा और टाइम मिल जाता है कि हाँ मेरा भी अब चिल हो गया है थोड़ा और। इंटर्न्स को सारे फालतू काम दिए जाते हैं, फाइल वर्क हो गया, कोल्ड ड्रिंक मंगानी हो गई, चाय समोसा हमारे लाइक पीपल ओपीडी में हमारे डॉक्टर लाइक अभी तक कॉफी नहीं लेके आओ, जाओ मैंने पेटीएम कर दिया कॉफी लेके आओ। ये फ्यूचर डॉक्टर्स कॉफी लेके आ रहे हैं सबके लिए। तो मतलब आप लोग भी यही सोचते हो कि डॉक्टर्स आर मोस्ट कंपैटिबल विद डॉक्टर्स ओनली? ये चीज तो रहेगी बिकॉज आई थिंक दैट अंडरस्टैंडिंग लेवल दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि यार इसकी ये ड्यूटी है, ही कैन अंडरस्टैंड मेरी ये ड्यूटी है, वो चीज आई डोंट थिंक सो अगर हम किसी और से करें तो मतलब थोड़ा टाइम तो लगेगा अंडरस्टैंडिंग बनाने में। अभी तो क्लियर है कि यार नहीं अभी कंसल्टेंट बुला रहे हैं तो जाना पड़ेगा, बट आई डोंट नो इफ अदर प्रोफेशन वुड अंडरस्टैंड व्हाट्स द नीड। कॉलेज में क्या डिफरेंस हो जाता है, लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज में देखो तो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स आई मीन जो कंसल्टेंट होता है कितना डिफरेंस होता है। लाइक हमारे में तो कंसल्टेंट अगर कुछ बोल दिया तो भैया वो करना ही है, बट इंजीनियरिंग में लाइक दे आर सो कूल एंड भाई करो ना करो भाड़ में जाना है। हाँ मेरे इंजीनियरिंग फ्रेंड्स आर लाइक एक्सट्रीमली चिल अबाउट एवरीथिंग। लाइक नहीं मेरे पेपर है, मैं अब नहीं अब 10-15 दिन में पेपर 10-15 दिन में तो पेपर है। मैंने कहा बहुत कम टाइम है, एकदम एंड का टाइम है 2 वीक्स। तो मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन था, जैसे हमें बोलते हैं कि अपने सीनियर्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए बिकॉज सीनियर जूनियर रिलेशनशिप इट एपरेंटली लास्ट्स अ लाइफ टाइम, सो इज दैट ट्रू? This profession is all about your social networking. Later on in life, you attend so many conferences, CMEs. There are a lot of things which are happening in town. तो उसमें you meet, greet your seniors. तो उससे बहुत फायदा होता है। See, I don't know about the medical branches, but surgical में तो seniors like your godfather because आप जो main cases करना सीखोगे, you learn from your seniors only. See, consultancy fixed timings होती है, they are with you in afternoon and वो अपना करके चले जाते हैं। But जो main emergency full night आप cases कर रहे हो तो उसमें आप अपने seniors को ही बुलाते हो और वही आपको सिखाते हैं। So it's like अगर आप seniors नहीं सिखाएंगे then how will you learn? एंड ये बॉन्ड सच में लाइफ लॉन्ग रहता है। इवन आई हैव सीन माय डैड गो एंड हेल्प जूनियर्स, तो कोई केस फंस गया बुरा वाला देन इमीडिएटली कॉल आता है, तो कोई जूनियर का होता है ना तो मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के उनके अंदर वो रिफ्लेक्स है कि दौड़ के जाके हेल्प करना। क्योंकि आपसे 1 साल सीनियर है तो उसने 1 साल ज्यादा केसेस देखे हैं। मे बी जो आप केस फर्स्ट टाइम देख रहे हो उसमें फंस रहे हो, उसमें ऑलरेडी फर्स्ट केस को ठीक कर चुका है। ही नोज कि उससे हाउ यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट मेस। तो एमबीबीएस में आई थिंक इतना फील नहीं होता होगा कि आप सीनियर जूनियर्स की बहुत वैल्यू है या रिस्पेक्ट वाला सीन है, बिकॉज मैक्स टू मैक्स जो सीनियर्स कैन मार्क योर बुक फॉर यू या थोड़ी बहुत हेल्प कर दी, बट क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा फील होता है। आई एम अ डे स्कॉलर सो मेरा इतना कोई आई डोंट हैव लाइक बहुत अच्छा बॉन्ड विद माय सीनियर, बट आई थिंक ये थोड़ा गवर्नमेंट में ज्यादा होता है। लाइक हियर व्हेन आई केम तो आई हैड अ वर्ड विद माय कोचार्स, तो वो दोनों ना केजीएमसी के हैं। सो वो मुझे बता रहे थे कि हम लोग जब अपने एमबीबीएस में थे तो हमारे ये लोग ना अपनी शायद सीनियर को मदर बोलते हैं, फिर उनकी जो सुपर सीनियर हो गई ग्रैंड मदर, कुछ ऐसा होता है। मतलब आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्ड्स। तो जैसा कि इनका पेपर होता था ना, फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉफ के लिए जा रहे हैं तो इनके सीनियर्स एक दिन पहले इनके लिए कार्ड्स बनाते थे और इनको ये रूटीन होता था कि इनको अपने
एग्जाम हॉल तक सीनियर्स ड्रॉप करने जाते थे. Shivang, I want to ask you, how much difference does it make? Like if you are in an environment where you have doctors all around and you, Kanika, comparatively, where there are no doctors around. एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि आप जब भी घर जाते हो आपसे क्वेश्चन पूछने जाते हैं. यहाँ पे तो मेरे साथ एमबीबीएस में लाइक व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो आई वाज बम्बार्डेड विद क्वेश्चंस एंड इवन माय फ्रेंड्स यूज्ड टू बी स्केयर्ड ऑफ डैड कि कोई मेरा फ्रेंड घर पे आता था तो डैड ऐसी मस्ती मस्ती में क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करती है. ये मैं कहूंगी मेरे लिए बेनिफिट है, नहीं पूछा जाता था. मैं मजे से जाती थी घर, बिना बुक्स लिए छुट्टी मना के आती थी. मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो भी मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है वो तो अपने मम्मी पापा को बोलेंगे मम्मी 9,000 की है एक बुक. वो भी कहेंगे अच्छा 9,000 कोई नहीं ले लो, 9,000 होती होगी, एमबीबीएस कर रहा है बच्चा, होती होगी. और जो डॉक्टर पेरेंट्स लाइक तुम ये बुक पढ़ोगे ये मैं तुम्हें ला के दूंगा. जिनके पेरेंट्स डॉक्टर बोलेंगे हम लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, चुपचाप घर आ जाओ, हमें पता है तुम कितना पढ़ रहे हो. और जो नॉन लाइब्रेरी, मम्मी मैं लाइब्रेरी में पढ़ रही हूँ, मेरे को खाना मंगवाना है, प्लीज मुझे 1,000 रुपए या 500 रुपए दे दो. हाँ तुम आराम से पढ़ो, हम भिजवा देते हैं पैसे. वो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है. लाइक मैंने क्रिप की पापा मेरी आज 48 आवर्स ड्यूटी लग गई तो डैड इज लाइक कोई बात नहीं, मैंने भी 72 आवर्स करी अपने टाइम पे. एक ये बहुत लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है कि प्राइवेट कॉलेज के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा पढ़ते नहीं है. विधि इज फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज एंड यू वर आल्सो एमबीबीएस आपने प्राइवेट कॉलेज से किया था एंड देन यू गॉट इनटू अ गवर्नमेंट कॉलेज. Even in government sector also you will see so many students who are not studying and flunking every year. And similarly प्राइवेट में भी यू विल सी सो मेनी स्टूडेंट्स जो मतलब इतना अच्छा स्कोर ला रहे होते हैं एंड देन ऑल्सो लैंडिंग अप इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर देयर पोस्ट ग्रेजुएशन. मतलब इफ आई टॉक अबाउट माई कोचिंग डेज, तो जब मैं कोचिंग में थी तो देयर वाज अ पर्सन ऑफ मौलाना आजाद ओनली. दैट वाज वन पर्सन जिसने मुझे काफी मोटिवेशन मेरे को उससे मिलती थी. उसको 3 years हो चुके थे to crack that entrance exam. Not that I am saying that he is not intelligent, but I am saying कि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट वाले नहीं पढ़ते. I'll tell you about my college this year. There were 9 selections from single batch and this was the 2 were of Central Institute including AIIMS Delhi. So I think यहाँ पे BRD में भी I think एक साल में hardly एक selection होता है. So this is the ratio. If I compare तो government private में क्या ratio है यार? It's totally आपका mindset कि आपको पढ़ना है कि नहीं. कॉलेज हम स्पेशली लाइक पीपल लाइक मी हु आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस फील्ड, वी थिंक कि जब हम डॉक्टर बनेंगे तो हम रोज न्यू केसेस देखेंगे, चाहे हम हॉस्पिटल में ही रहे पूरे टाइम, आई डोंट माइंड दैट, बट हम पूरे टाइम न्यू केसेस देखेंगे एंड सब केसेस बहुत थ्रिलिंग होंगे एंड सब में बहुत मजा आएगा. जितना जो एक हम ग्लोरिफाइड एस्पेक्ट देखते हैं ऑफ वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, ऑफ एक्चुअली प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर, and a lot has come from the TV shows and movies and stuff that we watch. If I just give you an example of an OPD, तो ओपीडी में आप अगर आपकी ओपीडी 300 की है तो 300 में से 290 तो आपके पेशेंट्स वो नॉर्मल होंगे जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, नॉर्मल केसेस. 10 ऐसे हो जाएंगे जो थोड़े मतलब डायग्नोसिस बनाने में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा होगा. इन केस ऑफ सर्जरी आई फील ज्यादा थ्रिलिंग एस्पेक्ट्स होते हैं. थ्रिलिंग यार इसलिए I mean, और कॉम्प्लिकेटेड केसेस आ सकते हैं. बेसिकली इवन फॉर अस 40 to 50% केसेस तो वही रहेंगे हर्निया, हाइड्रोसिल, कोई, बट द रेस्ट 50% खासकर इमरजेंसी केसेस दे समटाइम टर्न आउट टू बी वेरी इंटरेस्टिंग और रादर आई वुड से कॉम्प्लिकेटेड. Recently also I had posted about one case, if you all have seen, कि there was a sex addict, so he had inserted a whole bottle of beer inside him. कौन है ये लोग? So like we had to surgically take it out. So these cases are rare cases. कभी-कभी आते हैं, but yes, वो थोड़ा सा ज्यादा thrilling and interesting होता है. I think monotony sets in definitely when you are following the same routine कि सुबह उठो 8 बजे जाओ ड्यूटी, 4 बजे तक वही सेम पेशेंट का लिखते रहो, देखते रहो, उसके बाद जो भी ओटी करने वो करो एंड देन यू कम बैक. आई थिंक देयर इज अ पॉइंट व्हेन यू फील कि यार सेम ही रूटीन डेली फॉलो हो रहा है. इवन इफ यू फाइंड वन केस विच इज इंटरेस्टिंग, इट वोंट मेक कि यार पूरे दिन हमारा ऐसा हो गया, वाह ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज यू गेट एन हैबिट ऑफ इट. Doctors are so knowledgeable about the human body, they know how it works, they know what can go wrong. So we expect that doctors, they really take care of their health. Can you tell us what the reality actually is? I think doctors are the worst patients. Yeah. They do not like, I feel, क्योंकि इसलिए वो अपनी हेल्थ का भी नहीं केयर कर पाते, because the lifestyle
a doctor has is very different than the others. For example, they do not have a proper timing. अगर उनकी ड्यूटी रात की लगी हुई है तो फिर वो सर्काडियन रिदम पूरा बदल गया तुम्हारा, तुम रात को जाग रहे हो, सुबह सो रहे हो. That is also not good for your health. Then for example, you are working for 12 hours straight. You do not get a proper break. You get a break for like 5 minutes, 10 minutes. तो उसमें क्या खाने को आता है? समोसा, चाय, नमकीन. So all of these things you are actually indulging into until unless you are that much health free कि तुम अपना लेकर जाओ, जैसे मैं लेकर जाती हूँ. Thank you. अपने मुंह में या मिट्ठू बनना. एंड ऊपर से आज इतनी हेक्टिक ड्यूटी हो गई, फॉर एग्जांपल 12-14 आवर्स की, उसके बाद तो बहुत बढ़िया बाहर जाके लैविश खाने का मन करता है, नहीं घर का बोरिंग दाल चावल, तो उसकी वजह से और ज्यादा वो दिक्कत हो जाती है. और एक्सरसाइज करने का ऐसा टाइम मिलता नहीं until unless you make it as a priority, जो मैक्सिमम लोग मुझे लगता है नहीं कर पाते हैं. So, Kanika and Shivang, before we ended, I have to tell you guys, you are such a good-looking couple, and that adds to the entire, the glamour of your channel. So, I really enjoyed talking to you. You're not just beautiful, you're also got brains. Thank you so much for being part of this video. This was a learning experience for all of us. Mostly me. मेरे लिए तो आप सीनियर्स ही थे जिन्होंने मेरे को गाइड किया. We really love the video. And your channel is just doing fab. Hope you enjoyed this video. If you did, then make sure you like, share, subscribe और जाके Dr. Duo का channel भी subscribe करो. See you guys in the next one. Bye. Bye.